Assalamu alaikum, everyone, for the sake of recording. So this is our one another class of IGCSE O Levels Computer Science, and we are currently studying topic the internet and its uses. Keeping in mind कि my team हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 5.1 जिसके अंदर हमने वर्ल्ड वाइड वेब और दी इंटरनेट को पढ़ा था. फिर 5.2 जिसके अंदर हमने पढ़ा था ब्राउजर्स को एंड कुकीज को एंड ऑल दैट स्टफ. एंड 5.3 इज सिक्योरिटी. ठीक है, तो अब हम सिक्योरिटी को पढ़ रहे हैं. कीपिंग इन माइंड कि सिक्योरिटी के अंदर हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं. अगर हम अपने नोट्स को देखें तो हमने हैकिंग के मेथड्स भी पढ़ लिए, मैलवेयर को भी पढ़ लिया, वायरस, फॉर्म्स, रैंसमवेयर वगैरह वगैरह. और हैकिंग के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डेटा इंटरसेप्शन, फिशिंग, फार्मिंग, ये भी सब पढ़ लिया. सोशल इंजीनियरिंग भी हमने पढ़ लिया. और सोशल इंजीनियरिंग के अंदर एक थोड़ा सा फन फैक्ट ये था कि फिशिंग जो है वो भी हैकिंग और सोशल इंजीनियरिंग की कैटेगरी में फॉल करता है. मैंने आपको कहा था कि लास्ट क्लास में इनको हमने डिस्कस कर लिया था. ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. तो ये भी आपको इसी तरह से एज इट इज मतलब आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए कि भाई देयर आर 5 डिफरेंट वेज ऑफ सोशल इंजीनियरिंग. अगर आप इंस्टेंट मैसेज करते हैं किसी को, या किसी को स्केयरवेयर पॉपअप्स भेजते हैं, या आप किसी को जो है वो मैसेज या ईमेल करते हैं, उस पर स्कैम करने की कोशिश करते हैं, आप बेटिंग करते हैं, हम लर्न करते हैं किसी को, या फिर आप डायरेक्टली फ़ोन उठा के फ़ोन कॉल करके किसी को बेवकूफ़ बना लेते हैं. तो लाइक दिस इज द काइंड ऑफ अ थिंग दैट कैन बी डन. A few people have seen Wolf of Wall Street. There is a story of a multi-billionaire who actually was expert in making phone calls and cutting the deals over the phone calls, millions dollars की वगैरह वगैरह. Any case, तो ये सारी चीज़ें हमारी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं. इसको हमने थोड़ा सा, मेरे ख्याल में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कट गई है, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा कट कर लूँ. जिसको हमने कल डिस्कस किया था, if you remember that, कि 3 ह्यूमन इमोशंस होते हैं. The fear, trust, or curiosity. The curiosity, the fear, and empathy/trust. These are the 3 most strong human emotions that can be played by the social engineers who just manipulate these 3 emotions to get into people's skin, to hack them, to gain the knowledge so that the victims should lower their guards and you can hack them, steal their information. तो वो सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ये 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको आप एलैबोरेट कर सकते हो. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स बचाव के तरीके. मेथड ऑफ प्रिवेंशंस. हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स? मेथड ऑफ प्रिवेंशंस. वन मेथड तो ये है कि लेट्स गो टू द जंगल. मतलब you might have seen some movies in which a gang of teenagers, young boys and girls, they are so much tired of this, world, that they start making a cult, an organization which operate in the jungle, and they stop using phones, they stop using any, things. I think there was one really nice movie which I highly recommend for the people like of your age should watch. Yes, Uglies. Have you heard? Uglies. The name of the movie is Uglies. Have you heard about this movie? इसका second part अभी आने वाला है and I'm crazily waiting for it. I think this is a recommended movie for the teenagers to watch because there is a message in it. It is available on the Netflix. Basically this movie is method of prevention के अंदर थोड़ा सा मूवी का बता रहा हूँ. उसमें बेसिकली ये है कि एक advanced time के अंदर they have concluded after lots of work on genetic engineering and stuff,
they made everybody beautiful, look pretty, and they never age. लेकिन ये सारा प्रोसेस होता है जब आप 17 years या 18 years plus के हो चुके होते हो. So before you become an 18-year-old adult, उससे पहले you have to live at the place जहाँ पे अभी तक आप अब अगलीज हो, क्योंकि आपको अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफाई करके खूबसूरत नहीं किया गया. So all the uglies are living in the dorms under some government shelter, and they are being trained, and they all are waiting to be, get picked up and become beautiful one day. But out of that, there is a group of people who believe that this unnatural, only, a plastic world is not a good thing, it's not a place. So people should like believe in themselves, they should love themselves the way they have been created, and they should be aged, because aging is also a good process. तो वो इसके ऊपर एक यंग पीपल के लिए ना एक बहुत अच्छा मैसेज भी है इस मूवी के अंदर. तो मेथड ऑफ प्रिवेंशन की बात शुरू हुई थी. सो दैट group of people who believe that they were living in the jungles far away, not using any technology, so they cannot be traced. असल चेक क्या है कि देखो, जब तक आप स्मार्टफोन यूज करते हो, जब तक आप लैपटॉप पीसी यूज करते हो, जब तक आप स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक बनाते हो, जब तक आप कोई ना कोई फिंगरप्रिंट लगा के अपनी कोई आईडी सिम कार्ड डाल के इंटरनेट यूज करते हो, सो यू आर लाइक, इफ यू हैव अ बैंक अकाउंट नंबर और एनीथिंग, you can be easily traced, you can be hacked, you can be manipulated, you can be targeted. So to live in this world in which we are living right now and using all the technologies, we need this thing. The only way that ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ ये सबको बताना जरूरी होती है आजकल के दौर में. How to be prevented 100% is to live in a jungle, not using any technology. Just like वो अगलीस का जो मैं रेफरेंस दे रहा था. Other than that, if you wanted to live even in a village, but if you wanted to use electricity, if you wanted to be, some part of something, तो ultimately आपको जो है वो इसका हिस्सा बनना पड़ेगा. तो मेथड ऑफ प्रिवेंशन में सबसे पहले, लेट मी ट्राई टू फाइंड इट आउट. हमारे पास हमारे नोट्स में सबसे जो पहली चीज लिखी हुई है वो लिखा हुआ है एंटी मैलवेयर्स. ठीक है, ये एनिमल की तरह लिखा हुआ लग रहा है थोड़ा सा, पर एंटी मैलवेयर्स. So I'm going to put it down here. I'm not going to bore you much. बेटा malwares क्या होते हैं? वो कोड्स जो कि सिस्टम को हार्म करते हैं, उन कोड्स को फाइंड आउट करना और फाइंड करके उनको डिस्ट्रॉय करना काम एंटी मैलवेयर्स का. ठीक है, सो एंटी मैलवेयर या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स एंड रिमूव द स्पाईवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर. सिंपल इज दैट. ठीक है, तो सिंपली अगर हम इसके कीवर्ड्स को जमा करें, दे स्कैन systems for infected files or spywares. ठीक है, delete those files. अच्छा, delete के अलावा there is another word, delete. ये कोविड के अंदर बड़ा वर्ड मशहूर हो गया था. कौन सा वाला? Quarantine. Quarantine, yes. तो बस that's it. तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि एंटी मैलवेयर्स का ये वाला काम है. General features are detect and remove spywares, prevent a user from downloading a spyware. बिल्कुल इसको हम ये पॉइंट भी लिख देते हैं. Also prevent systems to be infected by outside networks, internet.
जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो तो इंटरनेट से अगर कोई स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में आने की कोशिश करता है तो उसको भी रोकता है ये, ठीक है। ब्लॉक एक्सेस टू द यूजर्स वेबकैम एंड माइक्रोफोन, स्कैन फॉर साइंस वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आपकी एंटी स्पाईवेयर्स कर रहे होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये काम फायरवॉल भी करती है। अच्छा, अगली चीज है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन रेफर्स टू लॉगिन क्रेडेंशियल्स। देयर आर 3 कॉमन फैक्टर्स यूज्ड इन ऑथेंटिकेशन। समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, समथिंग व्हिच इज यूनिक टू यू। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है, तो मुझे बता सकता है ऑथेंटिकेशन क्या होती है? ऑथेंटिक बंदा है भाई है सर ये किस। जिसमें आप अपनी प्रूव मतलब आप प्रूव करते हैं कि आप कौन हैं। हाँ, मतलब हम लाइक कहते हम लोग जब अपना पासवर्ड हैं डालते हैं किसी वेबसाइट पे, या जो अकाउंट होता है आपका होता है वो। ओके, यूजर नेम पासवर्ड्स। बेटा कोई और मुझे बताएगा कि ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है? Identifying someone for the authorization. ऑथेंटिकेशन इज ऑल अबाउट कि यार बताओ कि यार भाई ये तुम ही हो ना जो लॉगिन कर रहे हो। भाई Yes. आईडी कार्ड दिखा दो, जैसे पुलिस वाला कहता है जब आपको रोकता है कि भाई अपना मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं। तो शनाख्ती कार्ड जो देखना चाहता है कि आप पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, क्या आपका नाम पिक्चर वही है या नहीं है, ठीक है, कहीं आप इंडिया से तो नहीं आए हुए वगैरह वगैरह। सो ऑथेंटिकेशन इज ऑल अबाउट कि इफ इज इट यू और नॉट, ठीक है। और जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्योंकि मेरे पास प्रोबेबली मेरे A2 के बच्चे भी आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनका 30 अक्टूबर को आखिरी पेपर है, तो उसके बाद फिर आप लोग होंगे या फिर मैं होऊंगा। तो ये बेचारे, इनके कुछ दिन रह गए, इनको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। कंफर्टेबली आ जाओ। अच्छा अभी बैठो, अभी बाकी बच्चे आने वाले होंगे। और नो इशू, नो इशू। हमारे यहाँ O लेवल के बच्चे अभी, उनके साथ हम O लेवल के बल्कि बच्चे नहीं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स। Just have a seat. Usman and Nahil and Ubaid, rest of the people will be coming. बाकी शिफा वगैरह और बाकी सब बच्चे ऑनलाइन होंगे. Girls will be probably online. All right. So my O level warriors. Authentication के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड है। उसके अलावा हम और क्या यूज कर सकते हैं? आजकल के दौर में आप क्या क्या चीजें यूज करते हो ऑथेंटिकेशन के लिए? अपने फोन के ऊपर आप कैसे मेक श्योर करते हो फोन को बताने के लिए कि भाई ये मैं ही हूँ? Biometrics. Biometrics. Biometrics is a very big thing to talk about. I want to love talking about biometrics. What is biometric? What is bio? Something related to a person's biology. Something relevant to the biological aspect of a person. For Yeah. example, maybe a fingerprint, maybe IRIS स्कैनर, बिल्कुल नबीरा, फेस रिकग्निशन, बंदे का चेहरा। तो ये बायोलॉजी इन्वॉल्व हो गई बंदे की। अब तो यहाँ तक कहा जाता है कि हीट सिग्नेचर हर बंदे का यूनिक होता है, उसको भी मेजर करने के सेंसस बन चुके हैं। हर बंदे के चलने का अंदाज डिफरेंट होता है, उसको भी जब वो चलता हुआ आ रहा होगा तो कुछ सेंसर्स वो भी बता सकते हैं कि वही बंदा चल कर आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि किसी के चलने के अंदाज को भी फुल्ली 100% कॉपी करना, कुछ लोग नकल अच्छी उतार लेता है लेकिन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड द लिस्ट गोज ऑन, एवरीथिंग व्हिच इज रेलेवेंट टू एन इंडिविजुअल पर्सनस फिजिकल अटायर, फिजिकल बॉडी। तो बायोमेट्रिक में सबसे पॉपुलर कौन सा है आजकल? Fingerprint. फिंगरप्रिंट्स। आपको पता है कि 1 in a million लोगों के फिंगरप्रिंट सेम होता है? सही बोल रहा कैसे सर? हम लोग तो सिखा रहे हैं कि वो सेम नहीं होते। हूँ। 1 हम in a लोग तो सर बचपन में सिखाते हैं साइंस में कि ये मतलब कि रेयर होते हैं कि किसी का सेम है। 1 in a million के फिंगरप्रिंट सेम सेम होते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स के बाद अगली चीज आ जाती है IRIS, या इसके अलावा एक और चीज भी है जिसको हम कहते हैं रेटिना स्कैनर्स, रेटिना स्कैन। ये 1 in a billion लोगों के सेम हो सकता है। 1 in a billion, देयर इज अ पॉसिबिलिटी।
और समटाइम जो स्कैनर्स हैं वो भी आपके मिस्टेकन दो आइडेंटिटीज को सेम करके वो कर सकता है अगर काफी हद तक सिमिलैरिटी है। तो बायोमेट्रिक्स आर रेजिंग वगैरह वगैरह एडवांस लेयर टू द मैनी पर्सनल एंटरप्राइज सिक्योरिटी सिस्टम्स। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि IRIS स्कैनर है, रेटिना स्कैन, रेटिना एंड IRIS डिफरेंट है। आई थिंक सो, जैसे कि मेरा फिंगर्स, नबीरा कह रही है कि मैंने कोई किसी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ। नबीरा सेड के आई डोंट थिंक जैसे मेरे हुए लोगों के फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करते वैसे ही शायद काट करके कैसे कर सकते हैं। कट द फिंगर, ओ माय गॉड, यू गाइस आर लाइक टॉकिंग समथिंग डेंजरस गाइस। द मूवी स्टफ, द हॉलीवुड थिंग, देयर इज अ थिंग अटैच्ड टू इट। देखो इस पे हाउ टू पुट इट, सर मुझे तो फिंगरप्रिंट डिलीट करनी हो तो पासवर्ड पे डिपेंड करना। हाँ, अगेन वो आप जब अपना पासवर्ड डालोगे फिर आपको बोलना है कि जी मुझे अपने फोन पे फिंगरप्रिंट अपग्रेड करना है, तो उससे दोबारा आपका पासवर्ड डलवाएगा। डिफरेंट वे ऑफ ऑथेंटिकेशन यार। अब बात छिड़ी गई है तो बात कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट्स इज लाइक वन थिंग, उसमें किसी किस्म का जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि वो ये भी मेजर करता है कि द हीट is there or not in the body of the finger, or the prints that are being used that are alive or not. क्योंकि just not the James Bond stuff, just a tech stuff के fingerprints को fabricate किया जा सकता है किसी person के, और उसकी एक फेक फिंगर बना के उसको स्कैन किया जा सकता है। अब वो स्कैनर्स पे डिपेंड करता है कि क्या वो स्कैनर्स जो है वो एक सर्टन ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर रेंजेस को भी मेजर कर रहा है, विच कैन बी समवेयर इन बिटवीन 36 टू 39, मतलब उसको और थोड़ा सा बुखार भी है तो उस रेंजेस के अंदर, सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर भी उसको चाहिए, तो दैट्स अ पार्ट, तो वगैरह वगैरह। तो बेटा ये सारे जो है वो आपके पास सिग्नेचर रिकग्निशन, ठीक है, फिंगर ज्योमेट्री रिकग्निशन। फिंगर ज्योमेट्री का आपने देखा होगा कि अब जितनी डिवाइसेस की KYC हो रही होती है, मतलब अब स्मार्टफोन के ऊपर डिवाइसेस आ चुकी हैं, कंफर्टेबली एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। नादरा की भी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी वो आपके पूरे हाथ के फिंगर्स को स्कैन करता है। आप फोन से स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हो अपने फिंगरप्रिंट्स, यू नो दैट, नादरा के साथ क्रॉस मैच कर सकते हो। So they have this facility. So it's not one single finger or thumb. They scan the whole, all the fingers of your hand. और उसकी ज्योमेट्री को भी मेजर करते हैं कि आपके हाथ का और फिंगर्स का डिजाइन और हर एक फिंगर का दूसरे फिंगर के साथ डिफरेंस कितना है। इफ यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ माय फिंगर्स, एवरीबॉडी कैन हैव वेरिएशन इन इट, ठीक है। तो हाँ, ईयर शेप वाला भी है, वो इतना रिलायबल नहीं है। अगेन इट्स ऑल अबाउट द बायोमेट्रिक्स, ठीक है। ईयर शेप हो गया, वेन पैटर्न्स, इसके ऊपर भी बहुत बात हो रही है। हर किसी की जो बॉडी के अंदर हाथ में यहाँ इस जगह के ऊपर जो वेन्स है उसका पैटर्न डिफरेंट होता है। फेशियल रिकग्निशन हो गया, एंड द लिस्ट गोज ऑन, वॉइस रिकग्निशन, इसको सबको थोड़ा थोड़ा नीचे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा फिंगरप्रिंट स्कैन इज वन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड, प्रूवन, quite valid, quite fast, reliable way of identifying the identity, authentication, ठीक है। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? To identify if the person is authentic or not. So let me just put down the words. To identify the identity of a person, if that person is actually that person or not. आपकी मतलब जगह कोई दूसरा बंदा तो उसको लॉग इन नहीं करा, स्टील, दिस इज ऑल, द होल आइडिया इज अबाउट दैट ना, कि आपकी चीज को आप ही ओपन करें, खोलें, देखें, चेक करें। तो फिंगरप्रिंट इज वन ऑफ द सोफिस्टिकेटेड वेज ऑफ डूइंग इट। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जिसकी रिक्वायर्ड होगी तो हम देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से वो जो है वो आपकी पैटर्न्स को, रिजेस और वैल्यूज को मेजर करता है। इसकी तो डिटेल अभी रिक्वायर्ड नहीं है, चाहिए होगी तो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स क्या है कि एक्सपेंसिव है, फिंगरप्रिंट्स डैमेज, इंजर्ड होगी तो मुश्किल हो जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट्स हो सकती हैं,
एडवांटेजेस क्या है कि स्मॉल स्टोरेज रिक्वायर्ड, 1 या 2 फिंगर्स लगा के आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। इजी टू यूज, मोस्ट डेवलप्ड बायोमेट्रिक टेक्निक, सबसे कॉमनली यही यूज होती है। अच्छा, इसमें जो ये सेकंड वाला उसका डिसएडवांटेज मेंशन किया हुआ है ना फिंगरप्रिंट्स के अंदर, आई आल्सो फेस द सेम। आई हैव दिस थिंग विद मी, जैसे विंटर्स आ रहे हैं, अभी तो मेरा हाथ बिल्कुल सही है, एक्सट्रीम विंटर्स के अंदर आई हैव दिस लिटिल बिट ऑफ माय स्किन पीलिंग फ्रॉम द हैंड्स, फ्रॉम द ड्राइनेस। दिस हैपेंस टू मी सिंस माय चाइल्डहुड। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि दिस लाइक स्नेक आई गॉट द न्यू स्किन, बट ओनली फॉर माय हैंड्स, फॉर एवरी ईयर। So that little bit time of era, क्योंकि go to different colleges, I'm a visiting teacher, तो जहाँ पे बायोमेट्रिक स्कैन होता है अपनी अटेंडेंस के लिए, तो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये इशू आई कैन एक्चुअली फेस माई सेल्फ। तो इफ यू गॉट योर सेल्फ अ कट और अ ब्रूज और समथिंग विद योर फिंगर विच नीड टू बी स्कैन टू गेट योर आइडेंटिटी, यू विल बी हैविंग प्रॉब्लम्स। ओके, ये शेप रिलायबल नहीं है, ठीक है बेटा। रेटिना स्कैन्स और IRIS, ये 2 तरह के स्कैनर्स हैं, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी, जैसे कि मैंने कहा था कि 1 in a billion, तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी ज्यादा है, लेकिन इट्स मोर एक्सपेंसिव। जिसमें आपने देखा होगा कि पीपल ओपन देयर आई एंड देयर इज अ लाइट। आई थिंक एप्पल इंट्रोड्यूस्ड दैट रेटिना स्कैन विद द हेल्प ऑफ देयर कैमरास, इजंट इट? स्मार्टफोन्स में था ये शायद ऑप्शन। Not sure, sir, but I do know that they're used in like airports for check-in and check-outs. Because I recently went to KSA. हाँ बिल्कुल, आप ये करो, देखो, और आपके वो IRS। Yeah, they scan for my fingers first, but on my right hand I have a little bit of allergy I got from moving over to the Emirates. So they then उसकी scan my रीजन eyes. उसकी रीजन ये है कि people actually can change their fingers prints. They can draft, they can change, they can get themselves changed, and they can mask an identity. Airports is a place where you're letting someone inside your state in a country. तो वहाँ पे और ज़्यादा sophistication की वजह से रेटिना स्कैन्स लगाए जाते हैं। IRIS दोनों का ताल्लुक आंख से है। आंख के अंदर एक पोर्शन आपका रेटिना कहलाता है, एक IRIS कहलाता है। तो वो स्कैनर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि दे वांटेड टू मेक इट मोर कंफर्म्ड कि यार ये बंदा वही है, दूसरे बंदे को तो एंटर नहीं होने दे रहे हम अपने कंट्री के अंदर। ड्रॉबैक्स, एक्सपेंसिव एंड स्लो, यस इट डज टेक सम टाइम, ठीक है। तो ये 2 इसके पॉइंट्स रखिएगा याद। और हाई एक्यूरेसी और रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, even though there is a possibility, but so far yes, बिल्कुल बेटा, आप ड्रॉबैक के अंदर ये वाली चीज लिख सकते हो ना कि इन फिंगरप्रिंट्स इफ फिंगर्स इज डैमेज इंजर्ड, तो फिंगर्स के हमारे पास ये 2 ड्रॉबैक्स हो गए, और रेटिना के हमारे पास, अच्छा 2 ड्रॉबैक्स 2 एडवांटेजेस ही लिखने हैं, आपने तीसरे पे नहीं जाना, मेक श्योर कीजिएगा। यस लिशबा? So what does it refer to the drawbacks as slow in retina scans? रेटिना स्कैन्स आर कंपैरेटिवली, देखो फिंगरप्रिंट आप अपने फोन के ऊपर रखते हो ना, तो क्लिक करके फौरन खुल जाता है। इमेजिन कि अगर यहाँ पे आप रेटिना स्कैन लगाओगे तो आपको थोड़ी देर के लिए उसको देखना पड़ेगा, उसको जो पूरा आपका रेटिना स्कैन करने में समवट टाइम लगता है, उसको फिर कंपेयर करने के लिए डेटाबेस के अंदर। इट्स कंपैरेटिवली टाइम टेकन एज कंपेयर टू फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स। Facial recognition, everybody's favorite. I think most of the time अब ये सब phones के अंदर front camera के through they scan your face and they get your identity. इसके अंदर डेटाबेस में आपके कुछ फेसेस अगर इंक्लूडेड होंगे तो आपके फेस को स्कैन करके फॉरन उन 2-3 जितने भी फेसेस आपने डाले हैं उसके साथ कंपेयर करके वो आपको जो है वो बता देता है। यस सैयदा आमना, यू वांट टू से समथिंग? सर आई वांटेड टू आस्क कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर किसी को मतलब एक फिंगरप्रिंट से अनलॉक हुआ कोई डब्बा या कोई फ़ोन खोलना है तो वो ओनर की फिंगर काट के ले जा सकता है या उसे कदर करके उसके आंख निकाल के ले जा सकता है। हाँ, ये तुम लोग बहुत खतरनाक बातें कर रहे हो, ये रिकॉर्डिंग में भी आ रही हैं। अब ये यूट्यूब पे मैं डालूंगा ना, यूट्यूब इस पे वो लगा देगा
Any case, because study related research purposes, we can talk about it. Definitely, there is a possibility. जैसा कि आमना मैंने पहले कहा कि yes, there is a possibility, and yes, this can be done. The हाँ, मतलब एग्जाम में लिख सकते हैं। नहीं, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। एग्जामिनर डर के पेपर छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, they like the Cambridge and the British people are a bit sophisticated in that way, so they does not expect such answers coming from a young girl or a guy from like of your age. तो careful about that. इन चीज़ों को आप पेपर में मेंशन नहीं करोगे। सही है, आपने यही एग्जांपल्स देनी जो कि लिखी हुई है यहाँ पे। Do not give such horror kind of examples. लेकिन कैम्ब्रिज के अंदर yes. Other than that, Amna, I totally agree with you on this for the educational purposes. Yes, there is a possibility. Fingers can be chopped off, eyes can be pulled out, and they can be used to open a safe, maybe to bypass a security somewhere where if it's possible. क्या आप उसको स्कैन करके आप मूव कर सकते हो, क्योंकि जो स्कैनर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको तो एक सर्टेन पैटर्न चाहिए ना। उसने ये थोड़ी देखना है कि वो किसी ने हाथ में पकड़ा हुआ है या खुद बंदा खुद खड़ा हुआ है। तो यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। नहीं नबीरा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब व्हेन वी आर डूइंग फॉर सम रिसर्च पर्पसेस और स्टडी ना, वी कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ। लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, लोग डॉक्टर्स बनते हैं, और सिक्योरिटी के अंदर कंप्यूटर सिक्योरिटी और बायोमेट्रिक्स के अंदर बायोमेट्रिक्स में बातें सारी की जा सकती हैं, इन डेप्थ और बातें भी की जा सकती हैं। दैट्स टोटली फाइन। ऑलराइट बेटा, फेशियल रिकग्निशन का जिक्र हो रहा था, तो फेशियल रिकग्निशन के अंदर मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं जो मैंने एक्सपीरियंस की कि इन वन ऑफ द स्कूल वेयर आई टीच, तो वहाँ पे एक हमारी मिस थी, मुझे टीचर का नाम याद नहीं आ रहा। शी यूज्ड टू she was a good teacher of history and geography, but she used to put on makeup. So sometime the हम पीछे और टीचर खड़े हुए वेट कर रहे होते थे, क्योंकि उन मिस को जो फेशियल रिकग्निशन बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो टीचर्स के लिए लगाया जाता है उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहा होता था। तो फिर मिस को मैंने कहा कि मिस, क्योंकि आई एम अ कंप्यूटर साइंस पर्सन, कि मिस लुक, व्हेन यू पुट ऑन द मेकअप, हाउ डज द फेशियल रिकग्निशन वर्क? आप सब मुझे देख रहे हो ना? तो लाइक द डिफरेंस बिटवीन आईज, द शेप ऑफ द आईब्रोज, द डिस्टेंस बिटवीन माय नोज एंड कलर and all these things. So if you put on a makeup like this, के वो जो कैमरा आपको स्कैन कर रहा है वो उस सारे डिफरेंसेस को ठीक से मेजर नहीं कर रहा, उसके मेजरमेंट के अंदर चेंज आ गया, तो वो मतलब ताकि मैं इसको बुरा भी ना लगे, मैं कैमरे का जिक्र कर रहा था कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मिस कि इफ यू लाइक go and wash your face and you become another person, and when you put on a makeup you become an other person. But this is what even the scanners of the cameras, they get fooled कि भाई ये वो बंदा नहीं है, ये जो हमने इसको yesterday स्कैन किया था कि आइडेंटिटी के लिए, तो ये हमें पहचान, हम तो मिस को पहचान रहे हैं ना, क्योंकि ह्यूमन कैन सी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट वो कैमरा कह रहा है नहीं भाई आप वो नहीं हो, आप मिस अफशा नहीं हो, आप कोई और हो। तो the facial recognitions have that problem. Affected by the changes in the lighting, the person's hair change in age, and if the person is wearing glasses. So just like I've told you, this is the drawback. Inexpensive, बिल्कुल ही cheap है आजकल के आपके cameras, they can do the job. और non-intrusive, what does this mean? Intrusive. Okay. ठीक है, एडवांटेज इसका ये है कि ये जो है डिस्टर्ब नहीं होता, पता नहीं, मैं इसको थोड़ा खुद अपने तौर पे देख लूंगा। इंट्रूसिव इज अ वर्ड दैट वी यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पर्पसेस लाइक इफ इट्स बीइंग अफेक्टेड और नॉट, हाउ टू पुट इट देयर। बस ठीक है, एडवांटेज इसका ये है कि अभी इनएक्सपेंसिव है, और ड्रॉबैक इसका ये है कि अगर पर्सन की एज चेंज हो रही है, या वो गॉगल्स पहन कर आया हुआ है, या मेरी तरह उसके एकदम मैं बाल लगाकर चला जाऊं, समझ रहे हैं आप, तो वो पहचान नहीं पाएगा। दैट इज अ केस। यस अलिशबा।
Is it possible if like the face recognition thing in the phones, it recognizes side profiles? Come again, Rishma. So I was saying that the face recognition features in our phones, is it possible for them to scan the side profiles? Side profiles, हाँ, that depends, लेकिन मोस्टली जो फेशियल रिकग्निशन है ना, वो जैसे कि मैं दोबारा बता दूं, अभी तक की जितनी रिसर्च है, if you just look at me, तो वो लाइक इन चीज़ों को देख रहा होता है, आंखों का डिफरेंस, नोज लिप्स का डिफरेंस, नाक की, आंखों की शेप, आईब्रोज, तो इन चीज़ों को मेजर कर रहा होता है सारा। तो साइड प्रोफाइल इज लाइक समथिंग एल्स। तो ऑफ्टन जितने फेशियल रिकग्निशन है वो आपके फ्रंट प्रोफाइल पे ही चल रहे हैं अभी तक। मैंने तो साइड प्रोफाइल वाला नहीं देखा, मे भी इसको देखना पड़ेगा, लेकिन बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, बिकॉज हमारे पास जो ज्यादा डाटा है ना वो आपके फ्रंट फेस के ऊपर है। साइड फेस के ऊपर डेटा बहुत कम है, मतलब एक आंख नजर आ रही होगी, एक नोज की एक साइड नजर आ रही होगी, लिप्स, तो ज्यादा डेटा एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है हमें इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकग्नाइज करने के लिए। इफ यू गेट माय पॉइंट, Got it. सही है? ओके, गुड क्वेश्चन दो, गुड क्वेश्चन। तो बेटा फेशियल रिकग्निशन के बाद वॉइस रिकग्निशन, इफ यू हैव हर्ड द स्टोरी खुलजा समसम, अली बाबा और 40 चोर वाली कहानी सुनी भी है? नहीं सुनी? Yes, sir. Maybe not the story, but I think I've heard the dialogue and memes. भाई वो स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि 40 चोर होते हैं, और वो जब भी चोरी वोरी करता है ना, तो एक गार के अंदर सारा अपना सोना जो है वो संभाल के रख रहे होता है। तो जब वो किसी एक गार में जाता है, उसका एक दरवाजा होता है, तो उसके सामने जो उनका चोरों का सरदार होता है वो जाके बोलता है खुल जा सिमसिम। ठीक है, वो चोर का सरदार बोले या उनमें से कोई भी दूसरा बंदा बोले खुल जा सिमसिम का कीवर्ड बोलेंगे तो वो दरवाजा खुल जाता था और उसमें सोना रख के चले आते थे। तो ये चीज किसी और बंदे ने, जैसे कि अहमद हसन हो गया या लिशबा, उन्होंने छुपके से पत्थर के पीछे से ऑब्जर्व कर ली, और उन्होंने भी दरवाजे के सामने जाके बोला कि खुल जा सिमसिम, तो दरवाजा खुल गया, अंदर गए, उन्होंने सारा सोना उठाया, भाग गए। तो इसमें ड्रॉबैक क्या है? इसमें आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसमें वॉइस रिकग्निशन हो रही है, नहीं हो रही? नहीं सर। Sir, it's like word recognition. That is basically speech recognition. Speech recognition. खुल जा सिमसिम, उसको एक कीवर्ड चाहिए, कोई भी बोले, that is speech recognition. Voice recognition is who is speaking. कौन बोल रहा है, उसकी हर बंदे की आवाज, बोलने का उसकी पिच, साउंड, वर्ड्स को प्रोड्यूस करने का तरीका डिफरेंट होगा। उसको अगर आप ऑसिलोस्कोप, इट्स अ डिवाइस, उसके ऊपर आप अगर उसकी आवाज को देखेंगे ना तो उसकी पिच डिफरेंट बन रही होगी। तो खुलजा सिमसिम के अंदर स्पीच रिकग्निशन थी, वॉइस रिकग्निशन नहीं थी, जिसलिए उनका बेचारों का चोरों का बेड़ा फर्क हो गया। तो वॉइस रिकग्निशन में क्या है? लो एक्यूरेसी ऑफ कोर्स, स्पेशली बैकग्राउंड नॉइजेस अगर हो, यूज फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, इलनेस सच एज अगर आपको खांसी लगी हुई है, गला खराब है, आवाज चेंज हुई हुई है, तो भी नहीं पहचानेगा, बोलेगा भाई ये कोई और बंदा बोल रहा है। एडवांटेज अगेन है कि अच्छा, नॉन इंट्रूसिव का मतलब है कि इट्स इजीली अडॉप्टेबल, इट कैन बी यू नो, यार हमारे कैन यू ओपन द डोर, ये उस्मान वगैरह होंगे। Expensive क्योंकि already you guys have your microphones fit in your smartphones, and smartphones can install such softwares which can do the voice recognition. They can copy an individual pitch of each sound. ठीक है, तो खुलजा सिमसिम वाली बात याद रखिएगा, voice recognition से relevant. Guys, two-step verification, I think everybody knows about it. Walaikum salam, Usman. If two people have similar voice, it cannot differentiate. Just like my younger sisters, I'm the only brother and I have two younger sisters. तो अक्सर जब कभी वो फोन करती थी मुझे, तो मुझे नहीं समझ में आता था कि वो मेरी ये वाली बहन बात कर रही है, वो वाली बहन बात कर रही है। तो yes, systems can be deceived depending on कि आपकी वॉइस कितनी accurately same pitch हो रही है। फेशियल रिकग्निशन के अंदर अगर दो, जैसे मेरे दो कजन्स हैं, दोनों अब डॉक्टर बन के, पहले क्यूबा से आई थिंक यूरागोए और फिर अब अमेरिका में वहाँ बैठे हुए, दोनों बिल्कुल फुल्ली आइडेंटिकल ट्विंस हैं।
you cannot defer. Like even their mother is like easily fooled every time. She used to put like एक बच्चे के यहाँ पे ना वो जो सुरमा होता है ना, वो डॉट लगाया करती थी कि यार ये वो है, ये वो है. I don't know, sometime maybe वो किसी और को सुरमा लगा देती. You never know. But still they can use, might be using their identities here and there. I don't know. That's really, I don't know, dangerous. So we were talking about two-step verification. ठीक है? But two-step verifications को कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या होती है? Anyone? Verifying authentication twice. मतलब two-way authentication जो है वो एक सेकंड रखिएगा. Alright. Sorry. Two-step verification के आप जब किसी एक जगह पे लॉग इन कर रहे हो, लेट्स सपोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हो, तो वो कहता है कि मैं आपको एक पिन नंबर आपके फोन पे भी भेजूंगा ऑन अनदर डिवाइस. आप अनदर डिवाइस से अपने आप को वेरीफाई करें कि इज इट यू. आप यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं, आप ठीक डाल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्या वो जो एक और डिवाइस है क्या वो भी आपके पास ही है? क्या मतलब और फर्दर कंफर्म कर रहा था क्या वो भी आप ही हो. तो यूजर नेम पासवर्ड अगर किसी और ने डाल दिया तो आपका फोन तो उसके पास नहीं होगा, तो वहां से उसको वेरीफाई नहीं कर सकेगा. ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, कोड पिन, अहमद हुसैन, बिल्कुल. सो ये सारे टू स्टेप वेरिफिकेशन के मेथड्स हैं. ठीक है? is required two methods of authentication to verify. It is when user makes an online purchase, and how to define this. Automatic software updates. इसका जिक्र बस इतना से जिक्र किया हुआ है. Two step verification is, for example, if you're entering username and password, and the software or the application also send an OTP, one time password, to your smartphone to cross verify if is it you or not. ठीक है? इसको मैंने अपने वर्ड्स के साथ एक डेफिनेशन बना के दी हुई है. इसको दोबारा रिकॉर्डिंग में सुन के खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है? ये जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बात की है. तो समटाइम जब हम खुद लिख रहे होते हैं हम ज्यादा अच्छा लिख लेते हैं. ऑलराइट पीपल, मूविंग ऑन. ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ये सारे याद रखिएगा, ये सारी चीजें ही हैं. क्या है? ये सब मेथड ऑफ प्रिवेंशन है. अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखते हैं, अपनी फायरवॉल को, अपने एंटीवायरस को, अपनी एप्लीकेशंस को, उसके सिक्योरिटी पैचेस को, तो ऑफ कोर्स आप बचे रहेंगे दुश्मन के हमले से. सही है? तो दिस इज द थिंग. चेकिंग द स्पेलिंग एंड टोन ऑफ अ कम्युनिकेशन एंड द यूआरएल लिंक्स. इसके लिए मैं टर्म यूज करता हूँ. क्या टर्म यूज करता हूँ? किसी को पता है? जो हैकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आप हैक क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप खुद समझदार हो. यूजर इज कॉशियस. इफ यूजर इज ऑलरेडी केयरफुल, कॉशियस, तो फिर ये वाले काम नहीं होंगे. आपको कोई मैसेज कह रहा है, उसमें कोई ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और आपको लग रहा है कि फेसबुक की तरफ से मैसेज किया गया, लेकिन वो पाजीत की तरफ से मैसेज किया गया था इंडिया से, तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है? टोन कम्युनिकेशन की चेंज हो सकती है. आपको लगेगा कि यार यूबीएल, लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छा, नॉट बीइंग एनी स्पेसिफिक हियर, एग्जांपल देने के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन यार ये मुझे लग रहा है ये कोई थोड़ा टपोरी लैंग्वेज है, शायद मुंबई वाला लहजा लग रहा है, फैसलाबाद वाला लहजा लग रहा है मे बी. ठीक है? लेकिन तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट. ठीक है? क्योंकि नो डाउट लाइक कराची, फैसलाबाद, लाहौर, मुंबई, दीज आर ब्रिलियंट सिटीज. उनके जो ग्रेजुएट्स होते होंगे जब वो किसी कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव में जाते होंगे, अच्छा सही तरीके से परफॉर्म करते होंगे. लेकिन जो फ्रॉडलेंट वाला बंदा होगा ना, वो प्रोबेबली क्या होगा, वो इतना वेल एजुकेटेड नहीं होगा, वेल रिवर्स्ड नहीं होगा. तो अब लहजे से, टोन से पकड़ने की कोशिश करोगे. समझ रहे हैं? यार देखो, फिर ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो हम ज्यादा जो है ना किसी को बुरा भला नहीं बोलेंगे. एक जंग शुरू हो जाएगी यहाँ पे. इजीली आइडेंटिफाई एन इंडियन कॉलिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट.
Yes, Mustafa, I agree with you on this. Although www.google.com से मैसेज आया, बिल्कुल ये भी हो सकता है, जो कि हेलन विलियम्स और डेविड वॉटसन ने देखा था. All right. That सब was दाखिला और सब ग्रुप ये बुक में मैंने पढ़ा था, लेकिन इस तरह की था वो और crazy, man, crazy. हो जाते human errors, man, human errors. अच्छा, तो बेटा आप इन चीज़ों को केयरफुली देखें. URLs को देखेंगे. URLs जो है वो कोई HTTPS या कोई ऐसी जगह से तो नहीं है कि मतलब आपको का कह रहा है कि जी URL आपको इस पर क्लिक करें और आपको ये फेसबुक पे लेके जाएगा, लेकिन पहले फेसबुक के URL के अंदर फेसबुक का जिक्र ही नहीं है, कोई और ही कहानी, कोई कुछ और ही वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है. सो यू शुड नेवर क्लिक ऑन दैट लिंक. ठीक है. ईमेल एड्रेसेस का भी हम जिक्र कर चुके थे. ये फिशिंग के अंदर जो सारी हमने बातें की थी कि वो ऑथेंटिक जो है वो उससे आ रहा नहीं आ रहा. बाकी हम यहाँ पे किसी कंपनी का नाम तो नहीं लिखेंगे, किसी प्रोप्राइटरी कंपनी की तरफ से आ रहा है नहीं आ रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अच्छा गाइस, अब क्योंकि कुछ चीज़ें सोफिस्टिकेटेड है, देखो फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर की एनोटेशन भी आती है. ये थोड़े मोटे टॉपिक है, ये टॉपिक मोटे है, तो हैं ये सारे मेथड ऑफ प्रिवेंशन के अंदर, लेकिन इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, प्रॉपरली पढ़ेंगे. और इसका बाकी जो सब चीज़ें थी ना, ऑथेंटिकेशन और IRIS और फिंगरप्रिंट्स और टू वे ऑथेंटिकेशन और फेशियल रिकग्निशन और वॉइस रिकग्निशन, ये सब आसानी छोटी छोटी चीज़ें. इसका टेक्निकली भी इतनी कोई मुश्किल नहीं होती इसके पीछे की कहानी. ऑलराइट. फायरवॉल्स कॉमनली यूज होती हैं. प्रॉक्सी सर्वर जिसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स भी कहते हैं, ये बहुत कॉमनली और सोफिस्टिकेटेड और वेरी रिगरसली प्रैक्टिस्ड मेथड ऑफ प्रिवेंशन है दुनिया में. तो इसको हम थॉरली पढ़ेंगे. इसके ऊपर लोग प्रॉपर जॉब्स करते हैं. फायरवॉल एक्सपर्ट होगा वो 1 मिलियन वैसी सैलरी ले रहा होगा अगर वो प्रॉपर अच्छा बंदा होगा किसी भी कॉर्पोरेशन के अंदर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. लिटरली लाइक UBL का जो फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसकी सैलरी 10 लाख 12 लाख होगी, क्योंकि पूरे UBL को हो सकता है ज़्यादा भी हो. उसके नीचे 4 लड़के और उसने हायर भी किए हुए हो जो उन फायरवॉल्स को अपडेट करते हो. तो इसको हम बेटा थॉरली पढ़ेंगे. ठीक है, गेट इट? कैसे यस सर. चले. ओके, अपना बेटा बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह ताला आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून. और स्टे कनेक्टेड. अगर किसी को कोई क्वेश्चन की क्यूरी करनी है तो मुझसे फौरन रब्ता भी कर सकता है. ओके Yes, sir. ओके, ठीक. बाय बाय. All right, sir. जी जी अलिश, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल क्वेश्चंस ले रहा हूँ तुम लोगों के. All right.